Most welcome everyone, my dear students. Now, in this class, I am going to continue the remaining principles of Henry Fayol. As you are looking here, as you are seeing that the topic in today's class is Fayol's Principles of Management. अपने प्रीवियस क्लास में मैंने हेनरी फेयोल के जितने भी प्रिंसिपल्स को कंप्लीट किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उसको प्रिपेयर कर लिया होगा। आज के इस क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, इन 3 प्रिंसिपल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ कम टू द पॉइंट एंड कंसिडर the principle of stability of tenure of personnel. Here the meaning of personnel denotes to the employees working in the organization, and stability. Now consider the point, stability of tenure of personnel means what suggested Henry Fayol in this principle. While we are talking about the suggestion of Henry Fayol, then according to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employees. देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि अगर एक एम्प्लॉई सेफ और सिक्योर अपने आप को समझ रहा है जॉब पर, इफ़ द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी given by the management among the employees, then this feeling of job security among the employees automatically creates the feeling of belongingness among the employees, and it also creates the satisfaction among the employees. That's why Henry Fayol suggested that according to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. देखो, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर हम इस प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करें, देन एम्प्लॉयज, नाउ कंसिडर इफ satisfied in the organization, or another one is if unsatisfied. If employees are satisfied in the organization, then he will contribute 100% in the growth of organization. 100% contribution made by the employees. तो यहाँ पर हेनरी फेयोल का कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करे एम्प्लॉयज़ के बीच में, फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी को क्रिएट करे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि एक एम्प्लॉयज़ क्या हो, 100% सेटिस्फाइड हो. Because if employees are satisfied, if employees are feeling job security, then he will contribute their maximum in the organization. But if unsatisfied employees available in the organization, अगर employees के मन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अगर एम्प्लॉय अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम. इसके साथ ही साथ हेनरी फेयोल ने ये भी कहा कि फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पर. इफ़ फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ taking place in the organization, then it create a negative atmosphere. So here while we are talking about stability of tenure of personnel, then it is clearly given by the Henry Fayol that it must be created by the organizational management, that employee is safe, employees are secured in the firm. लेकिन देखो, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम जॉब रोटेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, बट फ्रीक्वेंटली ऐसा काम नहीं होना चाहिए. जो टर्नओवर है एम्प्लॉयज़ का, वो फ्रीक्वेंटली या ट्रांसफ़र या फिर आप कह सकते हो कि टर्मिनेशन, ये फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए. ये सजेशन था हेनरी फेयोल का.
और अगर इस तरीके की एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, स्टेबिलिटी की अगर कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर फॉलो कर रहे हों, देन अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव्स इफिशियंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रुक करके लगातार काम करता है, हार्डवर्क करके 100% अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उस कंडीशन में इम्प्रूव्स efficiency level of employees as well as improve the organizational capacity of employees also take place and no wastage of time and resources। अगर हम बात करें, अगर एक ही जगह पर एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है तो धीरे धीरे काम करते करते वो ट्रेंड हो जाता है और हर एक रिसोर्सेज से, सिचुएशन से, इन्वायरमेंट से वो क्या होता है, फेमिलियर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो टाइम या रिसोर्सेज के वेस्टेज की भी कहीं कोई संभावना नहीं बनती। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड इनिशिएटिव प्रिंसिपल इज सेइंग क्लियरली दैट द सजेशंस एंड आइडियाज which are coming from the employees, ideas, suggestions or any you can say that good creativity, if coming from the employee side, then it must be welcomed by the organizational head or by the managers in the organization. Henry Fayol suggested, or as per the principle of initiative, we can say that it refers to taking the first step with self motivation। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इनिशिएटिव प्रिंसिपल की बात करें, देन इट इज सेइंग अबाउट सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाला एम्प्लॉय है वो सेल्फ मोटिवेटेड है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। वो खुद नए नए क्रिएटिविटी को डेवलप कर रहा है, नए आइडियाज़ को फ्रेम कर रहा है अपने माइंड में। एंड Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है, जो टॉप लेवल पे काम करने वाला एम्प्लॉय है, वो इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करे, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि वो अपने तरफ से कुछ नई क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाए। इसीलिए हेनरी फेयोल की अगर हम बात करें, देन व्हाट ही सजेस्टेड, फेयोल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। कुछ नया करने का कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, कुछ नया करने के लिए अवसर देना एम्प्लॉयज को, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर इस तरीके का कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई जाएगी, इस तरीके का अगर मौका मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, देन एम्प्लॉयज़ ऑल्सो क्रिएट समथिंग न्यू, ही विल ऑल्सो ट्राई टू इनोवेट समथिंग न्यू एंड दैट विल बी प्रूफ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट गिव्स सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। अगर कोई एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई ऐसी प्लान को बनाता है, कोई ऐसी चीज़ को डेवलप करता है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होगा। एंड मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ बिफोर प्रिपेयरिंग द प्लान एंड पॉलिसीज़। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनिशिएटिव की, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड ने प्रिपेयर किया है प्लान्स और पॉलिसीज उसका अपोज करना। इनिशिएटिव मीन्स गिविंग समथिंग न्यू, सजेशंस इफ कमिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज साइड, देन इट मीन्स इट इज़ गुड एंड इनिशिएटिव in favor of organization. And if such type of opportunities are given by the managers to their employees, then you can say that it is one type of motivation. It is one type of motivation given by the managers to its employees. And while the organization is following such type of policy, then automatically you can say the positive effect of
this or principle, that is develops feelings of belongingness in employees. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ को, तो कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज़ के अंदर कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहने की एक फीलिंग क्रिएट होती है। एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसके फीलिंग्स की या उसके सजेशंस की क्या है, रिस्पेक्ट हो रही है। एंड employees achieve the target on time, and employees also try to understand that this is my own organization, and with this feeling, if the employees are working in the organization, then no doubt organization can achieve its target. So these are some positivity of this organization, and as well as you can say that organization also can eligible to maintain peace and harmony among the employees. And now the next one is spirit de corps. As you are seeing here, the last and 14th number principle is spirit de corps. स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि टोटल 14 प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय द हेनरी फ्यूल। हम लोगों ने प्रीवियस के वीडियोस में इसके पहले के सभी प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया हुआ है, और ये आपका लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट प्रिंसिपल इट इज़। एंड अंडर दिस प्रिंसिपल वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आप लोग इसको कंसिडर करिएगा। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए ये पूछ लिया जाता है सीधे, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन स्पिरिट डी कॉर्प्स। So what suggestion given by the Fuel here? Management must encourage the team spirit among the employees, you can say. Management must encourage and promote team spirit, tendency of team, TEAM। मैंने आप लोगों को पहले भी फुल फॉर्म इस वर्ड के बताए हैं। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। While we are talking about the full form of team, then what we can say that together, see, T for together, E for everyone, A for achieve, and M for more. Together everyone achieve more. And if team spirit developed among the employees, then it will be beneficial for the organization. Here under the spirit de corps, Henry Fuel suggested that it is the responsibility of management working in the organization. Management must encourage and promote team spirit, tendency of belongingness, tendency of team. While they are working in the organization, then they should understand that each and everyone is the part or is the member of the team, and unity and harmony among the employees. This will bring coordination and cooperation in the organization. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना अच्छा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अचीव होने के उतने ही चांसेस बनेंगे। एंड दिस कोऑर्डिनेशन इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो हेनरी फ्यूल सजेस्टेड दैट ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। देखो, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक फीलिंग होती है आई की, आई मीन्स मैं मीन्स क्या होता है, अहम आप कह सकते हो, मतलब एक तरीके से गर्व की बात आती है। लेकिन यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने ये सजेस्ट किया कि आई रिप्लेस्ड विथ वी, मीन्स जो फीलिंग मैं की है ऑर्गेनाइजेशन में वो वी से रिप्लेस होनी चाहिए, मैं ना हो करके हम लोग हों। वी मीन्स हम लोग हों या हम हों, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में ये जो टेंडेंसी है हम लोगों की, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं मैनेजर फील करे कि केवल हम ही हैं या केवल मैं
हूँ जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बल्कि ये फीलिंग होनी चाहिए कि वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर डूइंग these things, we are achieving the organizational goal, ना कि I. That's why Henry Fayol suggested that a manager should replace I with we, and this will give rise to mutual trust and belongingness among team members. क्योंकि देखो, जैसे अगर आप क्रिकेट के मैच को ही देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए ये है, क्रिकेट के मैच में जितने भी प्लेयर होते हैं, क्रिकेट के मैच का अगर आप एग्जांपल लो, किसी और भी मैच का अगर आप एग्जांपल लो, तो उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सभी टीम के मेंबर होते हैं। और टीम के जीतने में किसी एक मेंबर का, जैसे आप कह सकते हो किसी कैप्टन का केवल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि उस टीम के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, उन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर के कहीं वो टीम विनर हो पाती है। तो वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जितने भी एम्प्लॉई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का सभी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, इट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. It must develop and encourage the team spirit, tendency of belongingness among all employees. That's why Fayol suggested that a manager should replace I with we. ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों की टेंडेंसी होनी चाहिए, मैं की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के बीच में. एंड दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स. If the organization is following such type of principles, then it will help in the development of employees as well as in organization. Means अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, then you can say that develops team spirit. अगर इस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट की टेंडेंसी डेवलप होगी एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अगर हम बात करें, देन इट इज ग्रुप गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीन्स 100% प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज़ को. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ satisfaction of each and every employee in the organization, with the team spirit in the organization. So while the organization is following all these principles given by Henry Fayol, then organization can flourish and can achieve its organizational goal. So it is all about Henry Fayol's principle of management. Now thank you so much for watching this video. I hope that it is beneficial for you. Okay, thanks a lot.